હાલેલુયા. અમારા જીવતા જાગતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમે તમને માન આપીએ છીએ. અમે તમારા છે, તમારા હજુરમાં નમીએ છીએ. અમને એકઠા કરી આભાર. આભાર પ્રભુ. Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं. bow down ourselves before you. आपके सामने हम अपने आप को झुकाते We हैं. thank you for giving us this day. हमें यह दिन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. We come in Jesus' name. हम यीशु के नाम में आते हैं. In His name you listen, we believe. उसके नाम में पिता आप सुनते हो, हम यह विश्वास करते हैं. We ask forgiveness if there is sin. यदि कोई पाप है तो हम माफी मांगते हैं. Because of our Lord Jesus Christ, please forgive us. हमारे प्रभु यीशु मसीह की वजह से मेहरबानी करके हमें माफ करो. Father, we are here to listen your voice. पिता, हम यहाँ आपका आवाज सुनने के लिए आए हैं. We want to study your word. हम आपके वचन का अभ्यास करना चाहते We हैं. want to find out the truth. हम सत्य को ढूंढ निकालना चाहते And हैं. so we humble ourselves. इसलिए हम अपने आप को नम्र करते हैं. We want to listen your voice. हम आपका आवाज सुनना चाहते हैं. We want to agree with your truth. आपके सत्य के साथ हम सहमत होना चाहते हैं. Speak to us. हमारे साथ बात करो. Holy Spirit, come. पवित्र आत्मा हो. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते Take हैं. our control. हमारा नियंत्रण लो. Touch our eye. हमारी आंखों को छुओ. Touch our ear. हमारे कान को छुओ. Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ. So that we can know, understand God. ताकि हम जान सके और परमेश्वर को समझ सके. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमेन. Hallelujah. यहोवा का Good महिमा हो. morning. सुप्रभात. Shalom to each one. हर एक को शांति मिले. Bible people, there are many Bible people who are beautiful people. बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो सुंदर लोग हैं. Joseph was a beautiful person. यूसुफ एक सुंदर व्यक्ति था. If you read in Genesis 38:28, यदि आप पढ़ो उत्पत्ति की किताब उसका 38वां अध्याय और 28वां वचन. he was sold in 20 pieces of silver. उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया था. If someone want to sold you, people will say, I will give no price. Yes. Okay. 37, 28. माफ करना, उत्पत्ति का 37वां अध्याय उसका 28वां वचन. Yes. Joseph was sold at 20 pieces of silver. यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया गया. So this was a beautiful person. तो यह एक सुंदर व्यक्ति था. And once it says in Genesis 39 and verse 6 and 7, और एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय 6 और 7वां he was वचन. slave at Potiphar's house. जो पोटीफार के घर में गुलाम था. And there this Potiphar wife saw this beautiful young person Joseph and she was attracted. और पोटीफार की पत्नी ने यह सुंदर जवान यूसुफ को देखा और उसके प्रति वह आकर्षित हुई. And she fall in love with that fellow. और वह औरत उस व्यक्ति के साथ प्रेम में पड़ी. So this Potiphar wife fell in love with this Joseph, slave Joseph. तो यह पोटीफार की पत्नी यह गुलाम यूसुफ के प्रेम में पड़ी. So this Joseph was a beautiful person. तो यह यूसुफ सुंदर व्यक्ति था. Moses was also beautiful in Matthew, in Exodus 2nd chapter verse 2. मूसा भी सुंदर व्यक्ति था. निर्गमन की किताब 2 अध्याय 2 वचन. Saul king, son of Kish, he was also a young handsome fellow in 2 Samuel 9 and verse 2 says. दूसरे समूएल की किताब 9वां अध्याय 2 वचन कहता है कि किसका बेटा. Sorry, 1 Samuel 9 chapter verse 2. पहले समूएल की किताब 9वां अध्याय 2 वचन कि किसका बेटा साउल जो राजा था वह भी सुंदर था. And no other Israelite were more handsome than this Saul. और इजरायलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था. When Saul stood with other people, you can see his head and shoulder above all other anyone else head. साउल जब दूसरे लोगों के बीच में खड़ा रहता था तो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे. Another fellow was David. He was also beautiful, handsome boy. दूसरा व्यक्ति दाऊद था. वह भी एक सुंदर लड़का था. 1 Samuel 16 verse 12. पहले समूएल की किताब 16वां अध्याय 10वां वचन. Here it says, माफ करना 12वां वचन. Samuel when he saw David coming, समूएल ने जब दाऊद को आते हुए देखा, David was a ruddy and beautiful eyes and a handsome
he was in appearance. तब दाऊद की लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। In 1 Samuel 17 verse 42, when Palestine that Goliath he saw David, he also praised this David. पहले समूएल की किताब 17वां अध्याय 42वां वचन, जब वह पलिश्ती गोलियात ने दाऊद को देखा तो उसने भी दाऊद की प्रशंसा की। He saw, it says, he saw David, he despised him because he was just a boy, ruddy and handsome fellow. जब उसने दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। Absalom was also a beautiful person. अब्सलोम भी सुंदर व्यक्ति था। 2 Samuel 14 chapter verse 45. दूसरे समूएल Sorry, 25. दूसरे समूएल की किताब 14वां अध्याय 25वां वचन। But in all Israel there was none to be so much praised as Absalom for his beauty. समस्त इज़राइल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अब्सलोम के तुल्य और कोई न था। From the sole of his foot even to the crown of his head, वरन there was उसमें no defect in him. वरन उसमें नख से सिख तक कुछ दोष न था। So we just see beautiful people of Bible. तो हम बाइबल के सुंदर लोग देखते हैं। Now what about Jesus Christ? अब यीशु मसीह के बारे में क्या? There are 3 view people believe. यीशु मसीह के बारे में ऐसे 3 दृष्टिकोण है जो लोग अलग अलग मानते हैं। One people say Jesus was a beautiful person. He was looking beautiful, handsome. एक प्रकार के लोग कहते हैं कि यीशु सुंदर दिखता था, आकर्षक था। Another people say he was just a normal person. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु केवल साधारण व्यक्ति था। Another people say he was not so good looking. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु अच्छा दिखने वाला नहीं था। So there are 3 stories in the world. तो इस तरह की 3 कहानियां संसार में चल रही है। What you believe, what your Lord he was looking like. आपका प्रभु कैसे दिखता था, आप क्या मानते हो? What is your belief in Jesus Christ? यीशु मसीह में आपका विश्वास क्या है? How he would be at that time. उस समय यीशु किस तरह का होगा? Beautiful. सुंदर। And if you see right now him, और इस समय यदि आप यीशु को देखो, you might fail in your assumption. तो आप शायद आप जो पहले सोच रखते हो आपकी उस सोच में निष्फल हो जाओगे। If you think that he was just a normal being as people, normal person, यदि आप ऐसा सोचते हो कि दुनिया के लोगों के जैसे यीशु भी साधारण व्यक्ति था, he was not a different kind person. और यीशु कुछ अलग नहीं था, यदि आप ऐसा मानते हो, And if you see him right now, और अभी इस समय यदि आप यीशु को देखो, then you might be in error, you might be fail in तो your assumption. तो फिर आप पहले से जो सोच लगाते हो उसमें आप निष्फल हो जाओगे, नापास हो So जाओगे। what you believe, did you ever studied? तो आप क्या मानते हो उसके बारे में आपने कभी अभ्यास किया? How he was at that time. उस समय यीशु कैसा था? When he was, when we read in Yeshaya 53 and verse 2, जब हम पढ़ते हैं यशा की किताब 53वां अध्याय 2 वचन, it says Jesus was having no beauty. वहां पर ऐसा लिखा है कि उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। And he has no form nor comeliness. और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। He had neither beauty nor majesty. उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। And when we saw him, there was no beauty that we should desire him or we should receive him. और जब हमने उसे देखा तो उसमें ऐसी सुंदरता नहीं थी कि जिसकी हम इच्छा रखें या उसे हम स्वीकार ले। So Jesus was without beauty. That's what it says in Yeshaya 53. तो यशा की किताब 53वें अध्याय में ऐसा कहा गया है कि यीशु में कोई सुंदरता नहीं थी। So how he was looking, he appeared to be. तो यीशु कैसा दिखता था, उसका दिखावा कैसा था? We believe in Jesus.
हम यीशु में विश्वास करते हैं, but what we believe. लेकिन हम क्या विश्वास करते हैं? Did we ever thought about his beauty? उसकी सुंदरता के बारे में क्या हमने कभी सोचा? Did we ever thought how he would be at that ancient time? वह पुराने समय में जब यीशु आया था तब वह कैसा दिखता होगा, क्या हमने कभी सोचा? Many people say he had a black hair. Solomon King says he was having black hair as raven or as a crow. जय बहुत लोग जिस तरह से कहते हैं, और सुलेमान राजा भी कहता है कि उसके बाल कौवे के जैसे काले कलर के थे, And also he say golden hair he was having. और वह सुलेमान यह भी कहता है कि उसके सोनेरी बाल थे। And John says in Revelation he was having white hair. और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता है कि यीशु के उस समय सफेद बाल थे। In Hebrew 2:14 says, इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 14 वचन कहता है, as since the children are partaker of flesh and blood, he also himself likewise took part as that Israel people. इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह यीशु भी आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, इजराइलियों के समान। He too was like Israelite. Did you ever saw Jew person? यीशु भी इजरायली के जैसा बना। क्या आपने कभी कोई यहूदी व्यक्ति को देखा है? He looked as they don't look like American. यहूदी लोग अमेरिकन लोगों के जैसे नहीं दिखते। They don't have golden hair. उनके सोनेरी बाल नहीं होते। They don't have blue eyes. उनकी नीली आंखें नहीं होती। They are Asian type people. वह लोग एशिया के लोगों के जैसे लोग हैं। When Jesus he rose back and he appeared to his disciple. जब यीशु मृत्यु से वापस उठा और अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ, Mark 16:12 it says there were two disciples, with them Jesus appeared. मरकुस का 16वां अध्याय 12वां वचन ऐसा कहता है कि 2 चेले थे, उनके सामने यीशु प्रकट हुआ। And it says in another form he appeared, so these 2 disciples didn't recognize him. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि दूसरे रूप में यीशु उनके सामने प्रकट हुआ, इसीलिए वो 2 चेले उसे पहचान नहीं पाए। Revelation 1:14 says प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 14वां वचन कहता है, when John he saw Jesus Christ, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, his head and his hair were white like wool. तो उसके सिर और बाल श्वेत उनके समान थे। And his eyes were as flame of fire. और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। Bible says Solomon King he had 2-time vision of this Lord. बाइबल कहता है कि सुलेमान राजा को 2 बार इस प्रभु का दर्शन हुआ था। God appeared him in 2-time in dream. परमेश्वर उसके सामने स्वप्न में 2 बार प्रकट हुआ। In 1 King 11:9 it says, पहले राजा की किताब 11वां अध्याय 9वें वचन में ऐसा कहा गया he है, appeared, Lord appeared him 2-time. प्रभु उसके सामने 2 बार प्रकट हुआ। Bible says, okay, you can read and you can see it. आपका बाइबल खोलकर यह पढ़ सकते हो। 1 John 1:1 says, पहले यूहन्ना का पत्र 1 अध्याय 1 वचन कहता है, John the apostle he says that who was from the beginning, that was Jesus Christ. यूहन्ना जो प्रेरित था वह कह रहा है कि जो पहले से था वह यीशु मसीह था। And we heard him about, and we also saw him with our eyes. जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। And we have looked upon, and our hand have handled of the word of the life. We have touched even that person. वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ भी उस व्यक्ति को। So these people, apostle, they were eyewitness of Jesus Christ. तो यह प्रेरित लोग यीशु मसीह के आंखों देखे गवाह थे। But we never saw him. लेकिन हमने कभी उसे नहीं देखा। 1 John 3:2 says, पहले यूहन्ना का पत्र 3 अध्याय 2 वचन कहता है, My beloved children, I am writing, John says, we are children of God. यूहन्ना कहता है कि हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। And it does not yet appear what we shall be like. और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। But we know when that Lord will appear, we will be like him. लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रभु प्रकट होगा
तो हम भी उसके समान होंगे, उसके जैसे बनेंगे। We will be exactly like him. हम उसके समान ही बनेंगे। Today we have took form of dust or mud. आज हमने मिट्टी या धूल का रूप लिया है। We came out from Adam. हम आदम से आए हैं And Adam was created, made from dust. और आदम को मिट्टी में से बनाया गया And we था have the form and we are of that dust. और उस मिट्टी से हम आए हैं। But we will be like Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह के समान बनेंगे। Philippians 3 and verse 21 says, one day we will be transformed, our lowly body will be like that Jesus Christ and we will be like him, glorious in glorious body. फिलिपी का पत्र 3:21 वचन कहता है कि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिन दिन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना He देगा। will transfer our body into his glorious, like his glorious body. वह हमारे इस देह को उसके महिमावंत शरीर के अनुकूल बनाएगा, रूपांतर करेगा। 1 Corinthians 15 verse 47 says, पहले कोरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय 47वां वचन कहता the है, first man that was Adam, he came out from earth and so we are also earthly. प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, इसीलिए हम भी मिट्टी के हैं। And the second man is the Lord. From heaven he came. और दूसरा मनुष्य वह प्रभु है, वह स्वर्ग से आया And we will be too like him. और हम भी उसके समान बनेंगे। Now, Jesus is compared with Adam. अब यीशु को आदम के साथ उसकी तुलना की गई। Adam and Jesus is the last Adam. Adam the first man. आदम प्रथम मनुष्य और यीशु अंतिम आदम है। So this what Paul says. तो ऐसा पौलुस कहता है, Adam was from dust. आदम मिट्टी से आया था, But the other Adam who came from heaven, लेकिन दूसरा आदम जो स्वर्ग से आया, so Jesus was looking like Adam. तो यीशु आदम के जैसे दिखता था। How was Adam he was looking like? आदम किसके समान दिखता था? Genesis 5th chapter verse 1 says, उत्पत्ति का 5वां अध्याय पहला वचन कहता है, this book Genesis is the book of generation of Adam. यह उत्पत्ति की किताब आदम की वंशावली के बारे में है। And in the days God when he created Adam, जब परमेश्वर ने मनुष्य की आदम की सृष्टि की, God made Adam in his own image, तब परमेश्वर in ने his like own likeness. परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप में बनाया। So Adam was looking exact like God. तो आदम परमेश्वर के समान ही दिखता So था। Adam was original copy of God. तो आदम परमेश्वर की वास्तविक नकल था, कॉपी था। So Jesus was also looking like Adam. तो यीशु भी आदम के जैसा दिखता था। 1 Corinthians 15 verse 49. पहले कोरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय 49वां वचन, We already have taken the image of Adam. That's outer image. कि हम सब ने वह आदम का स्वरूप धारण किया है, बाहर का दिखाव धारण किया है। But Jesus was also looking like Adam. लेकिन यीशु भी आदम के जैसा दिखता था। But Bible says in Philippians 2 and verse 7, लेकिन बाइबल कहता है फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 7वें वचन में, Jesus emptied himself and he had taken form of servant and he was made in human likeness. यीशु ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। Just keep on listening, you will understand what I am going to say. केवल आप सुनते ही रहो, मैं जो कहने जा रहा हूँ आप समझोगे। First Gospel of John, first chapter verse 1 and verse 14 it says, Word was God. यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन और 14वां वचन कहता है कि वह शब्द परमेश्वर था And God who was Word, he became man. और जो परमेश्वर जो वचन था वह मनुष्य बना। He took form of man. उसने मनुष्य का स्वरूप धारण किया। And some say that he was not looking a beautiful person. और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु सुंदर नहीं दिखता था। But Solomon says he was fairest of 10,000. लेकिन सुलेमान कहता है कि वह 10,000 में सबसे उत्तम सुंदर था। In Solomon, in Song of Songs 5th chapter verse 10,
सुलेमान की किताब श्रेष्ठ गीत उसका 5वां अध्याय 10वां वचन। David also praises Jesus Christ. Okay, David also praises. दाऊद भी अपने यह यीशु मसीह की प्रशंसा करता है। Solomon also says Jesus is my beloved and he is fairest of 10,000. सुलेमान भी कहता है कि यीशु मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। David also says दाऊद भी कहता है in Psalm 45 verse 2, भजन संहिता 45वां अध्याय 2वां वचन, you are the fairest than the children of man, तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है and grace is poured upon your lips. और तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ Therefore है। God has blessed you forever. इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी And है। this is for Jesus Christ. You can read further verse 6. और यह यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। आप आगे 6वां वचन पढ़ सकते And हो। you are the one who are going to sit on the throne and you are going to reign forever and ever. और हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। So this person is compared with man. तो इस व्यक्ति को मनुष्य के साथ तुलना की गई है You are fairer than children of man. कि मनुष्य के संतानों में तू परम सुंदर है। And also Solomon also says you are beautiful than 10,000. और सुलेमान भी कहता है कि 10,000 से भी अधिक उत्तम तू सुंदर है। And that is explained. He explained it. He described it in 5th chapter of book of Song. और सुलेमान यह बात का वर्णन करता है श्रेष्ठ गीत की किताब में 5वें अध्याय में। You can read it. आप वह पढ़ सकते हो। Now what is the truth? अब सत्य क्या है? Was Jesus like a normal person? क्या यीशु साधारण व्यक्ति के समान था? In Roman 9:5 says, रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 5वां वचन कहता है, Christ himself as a human person belonged to Israel people. He also was looking like Israelite. पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर Yes. युगानुयुग धन्य है। So he was also like Israelite. तो वह भी इजरायली लोगों के जैसा था। And so people saw him and said, you are like us. इसलिए लोगों ने उसे देखा और फिर कहा कि तू हमारे जैसा है। If Jesus would be like a foreigner, यदि यीशु विदेशी लोगों के जैसे दिखता होता and Mother Mary and Joseph, and they would say, this doesn't look like a Jew person. तो माता मरियम और यूसुफ शायद कहते कि यह व्यक्ति तो यहूदी जैसा नहीं दिखता, He's looking like American. यह तो अमेरिकन के जैसा दिखता Golden है, hair. सोनेरी बाल। And our Jew people don't have golden hair. और हमारे यहूदी लोगों के सोनेरी बाल नहीं होते। And he is having blue eyes. और उसकी तो नीली आंखें दिखती And हैं we are having brown eye. और हमारी तो बादामी और काली आंखें हैं। So here he says he was looking like Israel's brother. तो यहाँ पर वह कहता है कि यीशु इजरायली लोगों के समान दिखता था। And so when he came to his own, इसलिए जब वह अपने ही लोगों के पास आया, people didn't accept him. तब लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं। Why people didn't accept him? लोगों ने यीशु को क्यों नहीं स्वीकारा? Was Jesus normal like a Jew person? क्या यीशु यहूदी लोगों के समान साधारण था? Or he was more handsome than anyone? या फिर यीशु सबसे अधिक सुंदर था? Or he was the ugly person? या फिर यीशु कद्रूपा था? As it says in Yeshaya 53. जैसे यशा की किताब 53वें अध्याय में कहा गया, क्या वह ऐसा था? बदसूरत था क्या? Now I'm going to share 10 reasons why we believe Jesus was a beautiful person. यीशु मसीह रमणीय स्वरूपवान था, यह हम ऐसा क्यों मानते हैं उसके बारे में मैं 10 कारण बताऊंगा। Jesus was not looking ugly. यीशु बदसूरत नहीं दिखता था, But he was the beauty person, most beautiful. लेकिन वह सबसे सुंदरता में उत्तम दिखता था। Now let me share something. अब मुझे कुछ बताने दो। Matthew 19 verse 14 says, मत्ती का सुसमाचार 19वां अध्याय 14वां वचन कहता है, people brought children to Jesus Christ. लोग छोटे बच्चों को यीशु मसीह के पास लाए। And children didn't say, no, we don't want to go in this
this person in his arm. और बच्चों ने डरकर ऐसा नहीं कहा कि इस व्यक्ति की गोदी में हम जाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कहा। But people were bringing children in Jesus' arm. लेकिन लोग छोटे बच्चों को यीशु के गोद में लाते थे। And so Jesus said, don't stop people from bringing the children. इसलिए यीशु ने भी कहा कि बच्चों को लाने से उनको मत रोको। And the children even love Jesus Christ. और बच्चों ने भी यीशु मसीह से प्रेम किया। And the children led Jesus Christ to put his hand upon them. और बच्चों ने भी यीशु को अपना हाथ अपने उनके सर पर रखने दिया। If Jesus would be looking danger, यदि यीशु ऐसा भयानक दिखता होता, then children would say, no, don't touch us. तो बच्चे कहते कि हमें मत छुओ, मत छुओ। Even children are afraid of Santa Claus. बच्चे सांता क्लॉज से भी डर जाते हैं। But if they would see a beautiful Santa Claus, they would love to go near. लेकिन बच्चे यदि सुंदर सांता क्लॉज को देखेंगे तो उसके पास जाएंगे। So why we believe Jesus was beautiful? तो यीशु रूपवान था, ऐसा हम क्यों मानते हैं? Because no children cried before Jesus Christ. क्योंकि कोई भी बच्चे यीशु मसीह के सामने रोए नहीं, But all were coming to be blessed. लेकिन सब बच्चे आशीष पाने के लिए यीशु के पास आते थे। One more thing. और एक बात, Luke 7 verse 38. लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 38वां वचन। One beautiful lady came and she kissed Jesus' feet. एक सुंदर औरत आई और उसने यीशु के चरणों को, पैरों को चुंबन किया। Luke 7:38. लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 38वां वचन। Though no one loved to kiss ugly fellow. कोई भी बदसूरत व्यक्ति को चुंबन करना पसंद नहीं करेगा। One more thing. और एक आगे बात, Why we believe Jesus was beautiful? यीशु सुंदर था, ऐसा हम क्यों मानते हैं? Luke 7 verse 45. लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 45वां वचन। When Jesus went to Pharisee Simon's house, जब यीशु सिमोन फरोसी के घर गया, Jesus said, why didn't you kiss me? तब यीशु ने उसे कहा, तूने मुझे चुंबन क्यों नहीं किया? If Jesus would be ugly fellow, यदि यीशु बदसूरत व्यक्ति होता, then he would say, I know why didn't you give me kiss. तो यीशु खुद ही कह देता कि मैं जानता हूं तूने मुझे चुमा क्यों नहीं। But he said, why didn't you kiss me? लेकिन यीशु ने सवाल किया कि तूने मुझे चुमा क्यों नहीं। One more reason why we believe Jesus was a beautiful person. यीशु सुंदर था, ऐसा हम मानते हैं, उसके लिए एक और कारण। At Martha, Miriam, Lazarus' house, Jesus, he visited him frequently. मार्था, मरियम और लाजर के घर यीशु वारंवार जाता था। In Luke 10 chapter verse 39 it says, Mary sit at Jesus' feet. लूका का 10वां अध्याय उसका 39वां वचन कहता है कि मरियम यीशु के पांवों के पास बैठती थी। It means if there is a crowd, she would sit more near to Jesus. तो उसका अर्थ ऐसा है कि यदि भीड़ होती है तो मरियम यीशु के और करीब बैठना चाहती थी। She sit first in the row. और लाइन में मरियम सबसे पहले बैठती थी। If Jesus was an ugly fellow, यदि यीशु बदसूरत व्यक्ति होता तो lady wouldn't sit near him. Near him. तो स्त्री उसके नजदीक नहीं बैठती। More we see Luke 8 chapter verse 1 to 3. और आगे हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से 3 वचन। When Jesus started his ministry, many women who were healed of evil spirit and infirmities, they were with Jesus Christ. जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की थी तो कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, वे भी यीशु के साथ जुड़ी थी। Mary called Magdalene, मरियम जो she was possessed with 7 devils. मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, And she was delivered. और उसे छुटकारा मिला था। Jonah, the wife of Chuza, the superior of Herod, and Susanna, another lady were ministering Jesus Christ. और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां यीशु मसीह की सेवकाई So करती we थीं। see many women in Jesus' ministry. तो यीशु की सेवकाई में हम बहुत सारी स्त्रियों को देखते हैं। If Jesus would be a ugly fellow, यदि यीशु बदसूरत व्यक्ति होता तो then no lady would be attracted and sit and minister with Jesus तो कोई- and go in ministry.
तो कोई भी स्त्री यीशु के प्रति आकर्षित नहीं होती और उसके साथ बैठकर उसकी सेवकाई में भाग नहीं लेती। People were welcoming Jesus Christ. Come and Look. have dinner. लोग यीशु मसीह का स्वागत करते थे, कहते थे आओ और हमारे साथ भोजन करो। He was invited as a king. उसे राजा मानकर निमंत्रण दिया And जाता था everyone door were open for Jesus Christ. और हर एक के द्वार यीशु मसीह के लिए खुले थे। But people say in Yeshaya 53 and verse 2, he was not good looking. लेकिन लोग कहते हैं यशायाह की किताब 53वां अध्याय 2 वचन कि यीशु दिखने में अच्छा नहीं था। When we saw him, there was no beauty that we would desire him. जब हमने उसे देखा तो उसमें ऐसी कोई सुंदरता नहीं थी जिसकी हम इच्छा रखते थे। So when people saw Jesus Christ, this is the question. तो लोगों ने यीशु मसीह को कब देखा, यह सवाल है। When he was on cross, जब यीशु मसीह वधस्तंभ पर था तब, or when he was wrapped in cloth at the born time. या फिर जन्म के समय यीशु को कपड़े में लपेटा हुआ था तब देखा। It says when we saw him, he was not good looks. यहाँ पर ऐसा He has no good looks. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब हमने उसे देखा तो उसका रूप इतना अच्छा नहीं था। So Yeshaya 53 is not about birth, but it is about crucifixion. तो यशायाह की किताब 53वां अध्याय यीशु के जन्म के बारे में नहीं है, लेकिन यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया उसके बारे में है। So when he was on cross, he was the ugliest person. तो यीशु जब सलीब पर था तब वह सबसे बदसूरत व्यक्ति था And no one loved to see him. और उसे देखना किसी ने पसंद नहीं किया। But when he was born, लेकिन जब यीशु का जन्म हुआ people था came to see him. तब लोग उसे देखने के लिए आए। Luke 2 and verse 7 says, लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 7वां वचन कहता है, when Mary brought forth his firstborn son, and she wrapped him in sandling clothes and laid him in a manner. और मरियम जब अपना पहलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। Yes. And further the angel, he called people and said, come worship the Savior. और उसके आगे फिर स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा कि आओ और जो मसीहा जन्मा है उसकी आराधना करो। Luke 2nd chapter verse 9 to 11, I am reading, listen. लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 9 से 11 वचन में पढ़ रहा हूँ, सुनो। And see, an angel of the Lord was there by them, and glory of the Lord shone. It was bright around them, and they feared, and great fear. The shepherd, they saw this and they were afraid. और स्वर्गदूत ने चरवाहों के पास आकर कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। The angel said, fear not, behold, I am giving you good tidings of great joy. Yes. माफ करना 9वां वचन, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ चरवाहों के पास, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। The angel said, और स्वर्गदूत ने कहा, I'm giving you good tidings of great joy. मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। And this shepherd, they ran and went in the mingle. तब यह चरवाहे दौड़े और जाकर चरनी में गए। And they saw ugly baby. और उन्होंने वहां एक बदसूरत बच्चे को देखा। But the angel said, it's a great joy, you will be great, it is a great joy. लेकिन स्वर्गदूत ने कहा कि यह तो बड़े आनंद की बात है। And they went and saw ugly baby. और उन्होंने जाकर वहां क्या बदसूरत बच्चा देखा? No, they saw really great joy. There was a great joy when they saw the baby. ऐसा नहीं, लेकिन जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो बहुत आनंदित हुए। Amen. Amen. Angel said, go and see, I'm giving you good tidings. स्वर्गदूत ने कहा कि जाकर देखो मैं तुम्हें सुसमाचार देता हूँ। That was not a bad news. वह कोई गलत या झूठा सुसमाचार नहीं था। Angel didn't say, I'm giving you bad news. स्वर्गदूत ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें कोई बुरी खबर सुनाता हूँ। You will go and see ugly child. तुम जाकर एक बदसूरत बच्चे को देखोगे, ऐसा नहीं कहा। But said, लेकिन ऐसा कहा, I am giving you, oh shepherds, I'm giving you good tide. लेकिन And that will be
you will see and it will be great joy. लेकिन गडरियों को ऐसा कहा गया स्वर्गदूत ने कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ और तुम जाकर देखोगे, आनंद करोगे। Verse 11. 11वां वचन, For you, O people, for you is born this day in city of David a Savior, which is Christ the Lord. कि हे लोगों, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। And this will be sign for you. You will see baby wrapped in swaddling clothes, lying in a mangle. और तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चलनी में पड़ा पाओगे। And they went and saw. और वे गए और उन्होंने ऐसा देखा And there was joy. और वे आनंदित हुए। Amen. आमेन। And when this Jesus, he grew up and he was 8 days. और जब यह यीशु बड़ा हुआ और 8 दिन का हुआ, Luke 2nd chapter verse 28. लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 28वां वचन, There was one person named Simon. He was a prophet. He was waiting for Messiah. वहां पर एक व्यक्ति था सिमोन नाम का जो भविष्यवक्ता था और वह मसीहा के लिए राह देख रहा था। He was waiting. God is going to send a savior. वह राह देखता था कि परमेश्वर मसीहा को भेजने वाला है। And in the spirit he went, and spirit said, "Go in the temple, O Simon." और आत्मा ने उसे कहा कि हे सिमोन, Yes, Simeon. हे सिमोन, तू मंदिर में जा। And when the parents, they were bringing Jesus Christ as the custom of the law to circumcise. और जब सिमोन, Yes. और जब When- सिमोन उनके परंपरा के अनुसार, No, the mother father of Jesus Christ, as they went to circumcise Jesus Christ, और जब अपनी परंपरा के अनुसार यीशु मसीह के माता पिता उसका खतना करने के लिए मंदिर में ले गए, when they were carrying the baby Jesus, जब वह छोटे बच्चे यीशु को लेकर गए, and this prophet Simon, he saw this family और with a baby, तब यह समोन भविष्यवक्ता ने इस परिवार को इस बच्चे के साथ देखा and he saw Jesus Christ, और उसने यीशु मसीह को देखा। and he said, "Ugly." Did he say ugly? तो तब क्या समोन ने ऐसा कहा कि बदसूरत? No, he took it in his arm and he praised God. ऐसा नहीं कहा। समोन ने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। Verse 28. 28वां वचन, He lifted this baby, 8 days baby, lifted him and blessed God. उसने यह 8 दिन के बच्चे को ऊंचा किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। If he saw ugly person, यदि if he उस- would saw ugly person, he would say, praise God. यदि उसने एक बदसूरत व्यक्ति को देखा होता वहां, तो वह परमेश्वर की महिमा नहीं करता। But he says, लेकिन वह कहता my है, eyes have saw your salvation. मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है, Now let me go in peace. और अब तू मुझे शांति से विदा कर। So there are people who saw baby Jesus. तो ऐसे लोग थे जिन्होंने छोटे यीशु को यीशु जो छोटा बच्चा था उसे देखा था, And they rejoice. और उसे देखकर वे आनंदित हुए And they lifted in the arm और उन्होंने यीशु को अपने गोद में उठाया था and praised God even. और परमेश्वर का धन्यवाद भी किया था। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। If you see ugly baby, you cannot praise God. यदि आप बदसूरत बच्चे को देखते हो तो आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। Why we believe Jesus? When he was born, he was a beautiful person. यीशु जब जन्मा तब वह सुंदर व्यक्ति था, सुंदर बच्चा था, ऐसा हम क्यों मानते हैं? Moses said, God is going to raise prophet like me. मूसा ने कहा था कि मेरे जैसा परमेश्वर एक दूसरा भविष्यवक्ता भेजेगा। In Exodus 2:2, it says, Jochebed, the daughter of Levi, mother of Moses, when she was pregnant and she conceived and gave birth to this Moses. निर्गमन की किताब 2 अध्याय 2 वचन कहता है कि योखेबेद नाम का That lady, and Amron was father. योखेबेद औरत थी और अमरोन उसका पति, Yes, उसका पति था और दोनों
और जब वह स्त्री गर्भवती हुई and they had a beautiful child. तब उसका And एक this- पुत्र उत्पन्न हुआ Yes. और वह बालक सुंदर था Mother saw this is a beautiful child. और माता ने देखा कि यह बालक सुंदर है Now this beautiful child, he became a great prophet. और अब यह सुंदर बालक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना This Moses, God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा Deuteronomy 11, 18 and 18, व्यवस्था विवरण की किताब 18वां अध्याय 18वां वचन I will raise up from them a prophet like you, O Moses. कि हे मूसा मैं तेरे जैसा उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा Moses was a handsome person, मूसा रूपवान व्यक्ति था and so Jesus Christ should be a handsome person. तो यीशु मसीह भी रूपवान व्यक्ति होने चाहिए। Now we come in Yeshaya 53. अब हम यशायाह की किताब 53वें अध्याय में आते हैं। It says that Jesus was not looking beautiful. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि यीशु सुंदर नहीं दिखता था। When we saw him, we wouldn't like to see him. जब हमने उसे देखा तो उसे देखने की चाह नहीं रखी, But Simon saw, he took it in his arm. लेकिन समोन ने जब उसे देखा तो अपनी गोद में अपने हाथों में लिया। Angel said, good news, go and see. स्वर्गदूत ने कहा कि सुसमाचार है, जाकर देखो। And children were also coming to Jesus Christ when he grew up. और यीशु जब बड़ा हुआ तो बच्चे भी यीशु के पास आते थे। But here we see, when we saw, he was so ugly that we turned our face. लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब हमने उसे देखा तो वह इतना बदसूरत दिखता था कि हमने हमारे मुंह मोड़ लिए। Now there are 3 reasons why he became ugly. अब 3 कारण है उसके लिए कि यीशु बदसूरत क्यों बना। Yeshaya 53 and verse 6 says, यशायाह की किताब 53वां अध्याय 6ठा वचन the कहता Lord है, has laid on him the iniquities of us all. और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। And his face, and he faced the curse of God. और परमेश्वर के श्राप का उसने सामना किया। On the cross, he was a curseful person. सलीब पर यीशु एक श्रापित व्यक्ति था। Romans 5 and verse 9 says, रोमियो का पत्र 5वां अध्याय 9वां वचन कहता है, to save us from the wrath of God, he took it upon him. परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाने के लिए यीशु ने वह श्राप लिया अपने ऊपर। He faced the wrath of God. उसने परमेश्वर के क्रोध का सामना किया। Jesus took the punishment of our sin. हमारे पापों की सजा यीशु ने ली। In Yeshaya 53 verse 4 says, यशायाह की किताब 53वां अध्याय 4था वचन कहता है, God stricken him. परमेश्वर ने उसे मारा। It means he punished him. उसका अर्थ है परमेश्वर ने उसे सजा दी। It means God brought Jesus' face. उसका अर्थ है परमेश्वर के क्रोध को यीशु ने सहा। And he was wounded for our transactions. और हमारे अपराधों के लिए उसे मारा गया। He was bruised for our iniquities. और हमारे अधर्म के कारण उसे कुचला So गया। first reason he became ugly because of sin, our sin. तो पहला कारण है कि यीशु बदसूरत बना हमारे पापों की वजह से। Second thing, दूसरी बात, Galatians 13 says, गलाती का पत्र 3रा अध्याय 13वां वचन कहता है, Christ has redeemed us from the curse of the law and he was made curse for us. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर श्राप से छुड़ाया, So, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। and he was made curse, and upon him there was curse. और उसके ऊपर श्राप था। He was made curse for us. हमारे लिए उसे श्रापित बनाया गया। Romans 15:3 says, रोमियो का पत्र 15वां अध्याय 3रा वचन कहता है, for Christ even he was not pleasing himself, कि मसीह जो अपने आप को प्रसन्न नहीं करता था, but the insult of those who insult you, O God, it all fell upon me, as it is written. पर जैसा लिखा है कि हे परमेश्वर तेरी निंदा करने वालों की सारी निंदा मुझ पर आ पड़ी। Those who hate you, O God, all that hated me, looking at me. हे परमेश्वर जो लोग तुझसे नफरत करते हैं वह सब लोगों ने मुझे देखकर भी नफरत की। So Jesus was suffering curse, तो यीशु श्राप लेकर गुजर रहा था। and he was made sin.
और उसे पापरूप बनाया गया and wrath of God was upon him. और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर था। Third thing, तीसरी बात, why he was the ugliest person on the cross. वह सलीब पर यीशु सबसे बदसूरत व्यक्ति क्यों था? In Matthew 8:17 says, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 17वां वचन कहता Just है, listen. केवल सुनो, as Yesaiah prophet said that he will took our infirmities and will bore our sicknesses. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था That be fulfilled. Yesaiah prophet, what he prophesied, that would be fulfilled. कि वह पूरा हो कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। We know who are sick, they don't look beautiful. हम जानते हैं कि जो लोग बीमार होते हैं वे सुंदर नहीं Who are दिखते, not healthy, we know they don't look smart. और जो लोग दुर्बल होते हैं वे लोग भी अच्छे नहीं दिखते हैं, हम So जानते हैं। on cross, Jesus' beauty was vanished. तो सलीब पर यीशु की सुंदरता चली गई थी। So when we saw him on cross, we would hide our face and like not to kiss him or like to see him. तो जब हमने उसे सलीब पर देखे हम देखते तो हम उसे देखना, उसे चूमना नहीं चाहते और हमारे मुंह हम फेर लेते। And no one left with him, and people left him alone. और कोई भी उसके साथ नहीं रहा, लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। Yesaiah 53:4. यशायाह की किताब 53वां अध्याय 4वां वचन। We know in Israel people they get job to serve the old people, old care. हम जानते हैं कि इज़राइल में दूसरे लोगों को नौकरी मिलती है बूढ़े लोगों की संभाल रखने के लिए। Because at that time no one loved to go near them, even their own children. क्योंकि उस समय अपने बच्चे भी उनके पास जाना नहीं चाहते थे। ऐसा हम जानते हैं। Yesaiah 53:4 says, यशायाह की किताब 53वां अध्याय 4वां वचन कहता है, he was despised and forsaken of man. Third verse, sorry. वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। Now people have forsaken him because he left no beauty. अब लोगों ने उसे त्याग दिया था क्योंकि उसके अंदर सुंदरता नहीं बची थी। Man of pains and familiar with sicknesses. He was familiar with sicknesses. वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। Looking all sicknesses, people stay away. सारे रोगों को देखकर लोग दूर चले गए। Yeah, like one from whom the face is hidden, despised, and we wouldn't respect him. और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। So when sicknesses came, when we see a sick person or a diseased person, we say, please stay away. तो जब हम कोई बीमार या रोगी व्यक्ति को देखते हैं तो हम कहते हैं मेहरबानी करो, दूर रहो। Jesus was born perfect without disease. यीशु एक संपूर्ण रीति से जन्मा था, उसमें कोई दोष या रोग नहीं था। Without any disability. उसमें कोई ऐसी अपंगता नहीं थी। Without any ugliness. और कोई उसमें बदसूरती नहीं थी। But when he was on cross, he was changed. लेकिन जब यीशु सलीब पर था तब वह बदल गया था। Full of disease, रोगों से भरा हुआ, full of curse, और श्राप से भरा हुआ, and people love not him. और लोगों ने उसे देखना नहीं चाहा। We know Job. हम अय्यूब को जानते हैं। Job 16:20 says, अय्यूब की किताब 16वां अध्याय 20वां वचन कहता when he है, was rich and a healthy person, people come and sit. जब अय्यूब धनवान था और शक्तिशाली था तब लोग आकर बैठते थे। But when he was full of sickness, लेकिन जब अय्यूब रोगों से भर गया, verse 20 I'm reading. 20वां वचन में पढ़ रहा हूँ। And when Job was full of sicknesses, his wife was against, and his close friends even left him alone. And here says, my friends are now mocking. और जब अय्यूब पूरी रीति से रोगों से भर गया तो उसके मित्रों ने और पत्नी ने भी छोड़ दिया, ऐसा यहाँ पर लिखा है। We find it in Job. अय्यूब की किताब में हम यह पढ़ते हैं। But verse 20 says, लेकिन 20वां वचन कहता है, my friends are my mockers. मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। My eyes pour out tear unto God. परंतु और मैं ईश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। My friends are laughing at me.
मेरे मित्र मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। Job 19 verse 19. अय्यूब की किताब 19वां अध्याय 19वां वचन। All my best friends despise me, and those who love have turned against me because of all this disease. मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वह सब पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं, ये सारे रोग के कारण। Whom people love, लोग किससे प्रेम करते हैं? who are beautiful, जो सुंदर होते हैं but who are उनसे। ugly, लेकिन जो बदसूरत होते people हैं despise them, लोग उनसे दूर रहते हैं, turn their face, उनसे नफरत करते हैं और अपना मुंह मोड़ लेते हैं and behave that they don't know. और ऐसा बर्ताव करते हैं कि उनको समझ में भी ना आए। As they don't know this fellow, know this person. और उस व्यक्ति को जानते ही ना हो उस तरह से बर्ताव करते हैं। But Jesus, when he was born, लेकिन यीशु जब जन्मा था he was beautiful. तब वह सुंदर था। As it says in Solomon's Song of Songs, 5th chapter verse 10, it is about bridegroom, and another people also write this is for bride, but this is for bridegroom. ये जैसे सुलेमान लिखता है श्रेष्ठ गीतों का गीत 5वां अध्याय 10वां वचन। Many people say it is for bride. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यह कन्या के लिए लिखा गया है। Other people say it is for bridegroom. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह दुल्हन के लिए नहीं लिखा गया लेकिन दूल्हे के लिए लिखा गया। My beloved is white and ruddy, मेरा प्रेमी गोरा और लाल है and most chief among 10,000. और वह 10,000 में उत्तम है। But Jesus lost his beauty on the cross. लेकिन यीशु ने अपनी सुंदरता को वधस्तंभ पर खो दिया। Yeshaya 33:17, it was a prophecy. Listen. यशायाह की किताब 33वां अध्याय 17वां वचन वह भविष्य वचन था। Your eyes will see that the king. You will see king coming, and you will see him in beauty. तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। You will see him, his beauty. तू उसकी सुंदरता देखेगा। So when Jesus was formed in Mother Mary womb, तो जब यीशु माता मरियम के पेट में जब उसकी रचना हुई, it was a prophecy in Yeshaya in Psalm 139 and 13 to 16. तो वह भविष्य वचन था भजन संहिता की किताब 139वां अध्याय 13 से 16वें वचन में। Oh God, you have formed me, my inner organs, fashioned me within my mother's womb. कि हे मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। Now when God is creating and finishing and designing, he would design the best. तो जब परमेश्वर रचना कर रहा है, आकार देता है, बना रहा है, तो वह उत्तम बनाता है। Verse 14. 14वां वचन। And so I praise you because you are fearful and wondrous. इसीलिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। Why? Now the baby in the womb saying, I will praise you. अब गर्भ में जो बच्चा है वह क्यों कहता है कि मैं तेरी महिमा करूंगा? Your work is wonderful and I am fully aware of it. तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। My frame was not hidden from you while I was being crafted in the hidden place. जब मैं गुप्त में बनाया गया तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। Night together in the depth of earth, your eyes looked upon my embryo and everything was recorded in your book. और पृथ्वी के नीचे स्थानों में मैं जब रचा जाता था तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। So God formed Jesus Christ, designed Jesus Christ in Mother Mary womb. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को माता मरियम के पेट में रचा, उसको आकार दिया। And so it says, I will praise you. इसीलिए वह कहता है कि मैं तेरी महिमा करूंगा। If we see beautiful and handsome, यदि हम कोई सुंदर या आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं, then we recall or we say, who is your father? तब हम सोचने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारा पिता कौन है? Why Absalom was beautiful? अबशालोम सुंदर क्यों था? Because of his father. उसके पिता की वजह से। Why was David beautiful? दाऊद क्यों सुंदर था? Because of father. उसके पिता की वजह से। Because of his grandfather. उसके दादाओं की वजह से। And who was the most beautiful person? और सबसे उत्तम सुंदर कौन था? Adam. आदम। God created. परमेश्वर ने उसे बनाया।
And Jesus was the last creation. और यीशु अंतिम रचना था And he was formed in Mother Mary womb. और उसे माता मरियम के पेट में बनाया गया, रचा गया। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Why can't Jesus be best of all? If we say Joseph was beautiful, Moses was beautiful, Saul was beautiful, David was beautiful, and Absalom was beautiful. यदि हम कहते हैं कि यूसुफ सुंदर था, मूसा सुंदर था, साउल सुंदर था, दाऊद सुंदर था, अब्शालोम सुंदर था, तो फिर यीशु सबसे अधिक सुंदर क्यों ना हो सकता है? Because Solomon says क्योंकि सुलेमान कहता है his song in 5 and verse 10, श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय 10वें वचन में, my beloved is white and ruddy, and he is greatest among 10,000 men. मेरा प्रिय तो गोरा और लाल है और वह 10,000 में उत्तम है। Just we have counted 5 people of Bible, हमने केवल बाइबल के 5 लोगों को गिना है, not 10,000 हमने beautiful, handsome people. 10,000 सुंदर लोगों को नहीं गिना है। But among them, Jesus is the best. लेकिन वह सब में यीशु उत्तम है, श्रेष्ठ है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Now this is for Jesus Christ. If you read further verse 16, you will find out. और अब यह यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। यदि आप पढ़ो आगे का 16वां वचन, His mother is, his mouth is most sweet. Yeah, he is altogether lovely. This is my beloved and this is my friend. Oh, daughters of Jerusalem. उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। So Jesus is our friend. तो यीशु हमारा मित्र है And he is greatest among 10,000. और वह 10,000 में सबसे उत्तम सुंदर है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। But he lost his beauty because of us. लेकिन हमारी वजह से उसने अपनी सुंदरता गंवा दी। So on cross, he was not looking as beautiful as he was wrapped in the cloth. तो जैसे जन्म के समय में कपड़े में लपेटा गया उस समय जितना सुंदर था, ऐसा सुंदर यीशु सलीब पर नहीं दिखता था। Because God's wrath was upon him. क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर था। He was made sin for us. हमारे लिए उसे पाप रूप बनाया गया। And he was cursed. He was a curse. He was upon him there was curse. और उसके ऊपर श्राप आया और वह शापित बना। And all the disease, whatever in the world, all he faced. और दुनिया में जितने भी रोग है सब का सामना उसने किया। Just to give us healing, he took it upon him. He took it upon him. केवल हमें चंगाई देने के लिए उसने वह सारे रोग अपने ऊपर ले लिए। Praise God. परमेश्वर का महिमा If हो। you see sickness, see on Jesus Christ. यदि आप बीमारी को देखते हो तो उस समय यीशु मसीह की ओर दृष्टि करो। He took your disease. Look at him. उसने आपके रोगों को ले लिया, उसके प्रति देखो And you will be healed. और आप चंगे हो जाओगे। Amen. आमेन। I am going to give a small testimony. मैं एक छोटी गवाही दूंगा। I was having disease. मैं रोगी था, मेरे अंदर रोग थे And it was a uncurable disease. और वह ऐसा रोग था जिसकी कोई दवा नहीं थी। And I went and my father went all hospital and had we have been passed from many medicine treatment. और मेरे पिता बहुत सारे अस्पताल में गए मेरे लिए और हमने बहुत सारी सारवार की। And I came to Lord. और मैं प्रभु के पास आया। But still the disease were there. लेकिन फिर भी रोग थे। And I heard Matthew 18 verse 16. और मैंने मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 16वां वचन सुना। As it is said in Yeshaya, Jesus took all your sickness, believe it. A preacher, he preached. जैसे यशाया में कहा गया है कि यीशु ने आपके सारी रोगों को उठा लिया है, तो वह मान लो, ऐसा वह प्रचारक कहता है। The preacher said that see on the cross Jesus hanged for you. प्रचारक कहता है कि वधस्तंभ पर देखो कि यीशु को आपकी वजह से वहां लटकाया गया And है। whatever sickness you are carrying, see it on Jesus' body. और जो कोई भी रोग तुम्हारे शरीर में है उसे आप यीशु के शरीर में देखो। And I saw all that disease when he went on Jesus. और मैंने देखा कि वह सारे रोग यीशु मसीह पर गए। And on that moment, from that moment, I was healed. और उसी पल से मैं चंगा हो गया। And what
was said that you should not eat this and that, all I started eating. और जो मुझे पहले कहा गया था कि तुम्हें यह नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना है, रोग की वजह से वह सब मैंने खाना शुरू कर You should दिया। not eat onion, you should not eat meat, तुम्हें प्याज नहीं खानी है, तुम्हें मांस नहीं खाना you should है, not eat curry. और आपको दही नहीं खाना है, ऐसा जो लोग मुझे कहते थे। But I just believed Jesus Christ and all that went out. All that disease went out. और लेकिन मैंने केवल यीशु मसीह में विश्वास किया और सारे रोग चले गए और सब खाना मैंने शुरू कर दिया। So when someone received the sicknesses, it doesn't look nice. तो जब कोई रोगों को ले लेता है तो वह रोग लेने वाला व्यक्ति सुंदर नहीं दिखता। And so Jesus on the cross was the ugliest. इसीलिए यीशु सलीब पर सबसे बदसूरत दिखता था। And so people don't love to come near him. इसीलिए लोग उसके पास आना नहीं But चाहते the थे। truth is, he took your sin and my sin. लेकिन सत्य यह है कि उसने आपके और मेरे पाप लिए। Amen. Amen. Let's say amen. आइए आमीन कहे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Let's close दे। our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। The beautiful person, the beautiful baby, वह सुंदर बालक, सुंदर व्यक्ति, once when he was on cross, एक बार जब वह वधस्तंभ पर था, he became the ugliest person तब वह सबसे बदसूरत बना, because God wrath was upon him. क्योंकि परमेश्वर का क्रोध यीशु के ऊपर था Curse was upon him. और He was being made curse, और उसे श्रापित बनाया गया and he was beaten by God, और परमेश्वर ने उसे मारा and people cursed him. और लोगों ने उसे श्राप दिया, People rejected him, लोगों ने उसका नकार कर दिया and all the disease he took upon his body, और सारे रोग उसने अपने शरीर के ऊपर ले लिए। and so he became the ugliest person. इसीलिए वह सबसे कद्रूप, सबसे बदसूरत व्यक्ति बना। But for us, he took all that disease. लेकिन हमारे लिए, हमारी वजह से उसने वह सारे रोग लिए। Jesus, we love you. यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं। We love you for you have loved us. हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है। To save us, you have shed your blood. हमें बचाने के लिए आपने आपका लहू बहाया। To heal us, you took away our sicknesses. हमें चंगाई देने के लिए आपने हमारे रोगों को ले लिया। And by your stripe we are been healed. और आपके कोड़ों खाने की वजह से हम चंगे हुए हैं। You are the most beautiful person. आप सबसे उत्तम, सुंदर, श्रेष्ठ हो। You are the handsome person. आप रूपवान, आकर्षक व्यक्ति हो। We love you, Jesus Christ. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। We believe you. हम आप में विश्वास करते हैं। You are more than 10,000. आप 10,000 से भी अधिक Beautiful. उत्तम हो। 10,000 से उत्तम, सुंदर हो। Yes, Lord. हाँ प्रभु, We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं And this what we believe and we have confessed. और यह बात का हम विश्वास करते हैं और हम यह कबूल करते Father, हैं। I pray for each one पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना who करता are हूँ watching. जो लोग देख रहे हैं। Let they believe this truth. यह सब लोग ये सत्य का And विश्वास who करें agree with the Spirit. और जो यह आत्मा के साथ सहमत होते Who हैं agree with this teaching. और इस शिक्षण के साथ जो सहमत होते हैं, Let they be added to your church. वे लोग आपकी कलीसिया में जोड़े जाए And let they be blessed. और वे लोग आशीषित हो जाए, Be healed. चंगाई पाए Receive beauty of Jesus Christ. और यीशु मसीह की सुंदरता को पाए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's continue praying what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And for your debts, और हमारे अपराधों को माफ करो as if for you all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy is है, power, पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है। forever Father, you are our God. सदा के लिए पिता, आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा। Shalom. शालोम। Yes.